Okay, so we were discussing about network synthesis last time. It means we are given some specification and we have to guess what network is going to be. So we have to design or synthesize a network where how that network behaves is given to us. And this specification will be in the form of a network function, which is a ratio of polynomial in S. This I told you. For example, let us assume that you are given a network N in which you don't know what N is, but few things like information about I1, V1 and information about I2 and V2 is given to you. Okay, and you have to design such a network. You have to guess what is there inside N. Then we call such type of study as network synthesis. Okay, so if we have see in two port network we have four parameters I1, V1, I2, V2. Therefore I can have combination of these two as my function. For example, I can have current gain or current attenuation which will be ratio of I1 and I2. Okay, या फिर मैं बोल सकता हूँ it can be current attenuation which will be ratio of I2 and I1. Similarly, we can have voltage gain ratio of V2 by V1. So if I'm saying current gain, so I should use 2 by 1 and attenuation should be 1 by 2. And anyways, you can use either. And therefore also we can have voltage attenuation. These are only terms, like it may be possible कि attenuation 1 से कम है या gain 1 से ज़्यादा है, तो another physicist used a term कि if the ratio is more than 1 you treat that as gain. But anyways, if let's say I'm treating 1 as input and 2 as output, then I will always consider output upon input and treat that as gain. So I2 is output, I1 is input, then only I will get as gain. So voltage attenuation, जिसका की formula V1 upon V2 के बराबर. But you see that in these all ratios, we have one parameter of one port and the other parameter of some other port. 2 1 2 1 चल रहा है ना. That's why we call these as, ये जो भी functions होंगे इनको हम कहते हैं transfer function. We call that as transfer function. There is also one possibility that you may not be having only the ratios of same quantities, but you can have ratios of some other quantities like V2 by I1, yeah, V1 by I2, yeah, I can have I2 by V1, yeah, I can have I1 by V2. So these two will give me what is called as transfer impedance. And this will give me what then? What it will be? It will be simply transfer admittance. फाइन. सो मान लेते हैं हमारे पास ना तो ट्रांसफर टाइप के फंक्शन है, ना ही ये इंपीडेंस, ना ही गेन या अटेन्युएशन टाइप के. हमारे पास जो फंक्शन है वो है ड्राइविंग पॉइंट. एंड ड्राइविंग पॉइंट मींस you will have ratio of the same quantities, different quantities of same port, V1 upon I1. This is ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस ऑफ पोर्ट 1. इसी तरीके से V2 upon I2, Z2 ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस ऑफ पोर्ट 2. तो इस तरीके से आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन दिया होगा. एनी ऑफ द स्पेसिफिकेशन कैन बी गिवन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन एज अ ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस और अ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज दी होंगी. नाउ बिकॉज वी हैव ओनली रियल positive values of R, L and C, रियल एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर एल एन सी, तो आपका जो भी कहेंगे हम ड्राइविंग पॉइंट
इम्पीडेंस या एडमिटेंस फंक्शन होगा कोई भी चीज, ड्राइविंग पॉइंट, इम्पीडेंस या एडमिटेंस, इसीलिए इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इमिटेंस फंक्शन, IMMITTANCE। कोई इमिटेंस फंक्शन होगा, कैसे? इट विल बी एनी रेशियो, फॉर एग्जांपल इट कैन बी ZS और इट कैन बी YS, एंड दिस ZS और YS विल बी अ रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल इन S। एक पॉलिनोमियल होगा न्यूमरेटर में, एक पॉलिनोमियल होगा डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल एक इस तरीके से पॉलिनोमियल है 2LRCS स्क्वायर प्लस SCR स्क्वायर प्लस R प्लस CS डिवाइडेड बाय LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1, एनी फंक्शन, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है? डोंट गो कि ये कहाँ से आया। So you see that there is one polynomial in numerator and other polynomial in denominator. And notice that all the coefficients of all powers of S are real and positive. तो क्योंकि हमारे पास केवल R, L and C जो कि पॉजिटिव रियल एलिमेंट है वही अवेलेबल होते हैं, इसलिए ना तो मैं किसी कोएफिशिएंट को कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूं, ना ही किसी कोएफिशिएंट को मैं एक नेगेटिव नंबर लिख सकता हूं, ठीक है? तो यू रिमेंबर नाउ दैट द RLC एलिमेंट्स आर पॉजिटिव and therefore coefficient of all powers of S in numerator वाला side and denominator वाला side are positive real numbers, are positive real numbers. Okay, mind that. Another important thing is, तो ये दो चीजें तो हमें पता चली, that our driving point admittance function will be a ratio of polynomials in S domain. दूसरी चीज हमें पता चली, ये एक्चुअली हम कल ही पढ़ चुके थे, that all coefficients of all powers of S in numerator as well as in denominator will be positive real. अब हम तीसरी चीज करने जा रहे हैं। तीसरी चीज है that the difference in highest power of S in numerator and in denominator should be less than or equal to 1, should be less than or equal to 1। तो या तो हाईएस्ट पावर बराबर होनी चाहिए, और अगर डिफरेंस है तो मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंस इन द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है? हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, इन दोनों का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसका मतलब। सिमिलर इज द कंडीशन विद द डिफरेंस इन द लोएस्ट पावर। The difference in lowest power of S in numerator and denominator is also less than or equal to 1, ठीक है? तो किसी गिवन फंक्शन के रियलाइज होने में हमारे कुछ बंदिशों का फर्क है। कैसे? आप केवल और केवल तब कहेंगे कि ये फंक्शन रियलाइजेबल है जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो वेदर द गिवन फंक्शन इज अ नेटवर्क फंक्शन और नॉट, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो अब आप ये 4 टेस्ट लिख लीजिए याद रखने के लिए, ये 4 टेस्ट लिख लीजिए कि हमारे पास नेटवर्क फंक्शन दिया है, ये नेटवर्क फंक्शन रियलाइज कर पाएंगे या हम नहीं, ये 4 टेस्ट कीजिए। सबसे पहले चेक ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर ऑफ S must be real and positive, ठीक है? तो Fs इज अ नेटवर्क फंक्शन, इसमें हमारे पास एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ S कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी रियल एज वेल एज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट है
रियल और पॉजिटिव दोनों मिला के लिख लिए। दूसरा पॉइंट है दैट हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस हाईएस्ट, यहां एसटी लगा लीजिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। इसी तरीके से जो लोएस्ट डिग्री होगी ऑफ न्यूमरेटर माइनस लोएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ना तो हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो सकता है, ना ही लोएस्ट डिग्री का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ व्हाट आई विल डू, आई विल थ्रो अ फ्यू एफएस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल आस्क यू वेदर इट इज फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ आवर नेटवर्क फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन देता हूं आपको, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s। सो यू सी दैट न्यूमरेटर में सभी के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में सभी के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की क्या है 2, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की क्या है 2, 2 minus 2 0, 0 is less than or equal to 1 following। lowest power क्या है, lowest power is 1 here, what is the lowest power here, the lowest power is 2 here, तो 2 minus 1 is 1, 1 is less than equal to 1। ठीक है, अगर बाई चांस मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक 3 और जोड़ देता, मान लेते हैं, तो ये इस डेफिनेशन को डिफाई करता। देखिए, हालांकि सभी कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव, all coefficients are positive, no doubt all coefficients are positive, but the difference in the highest power is 0 still। highest power दोनों की, न्यूमरेटर की as well as denominator की, 2 minus 2 0 है, but still there is one problem, and what that problem is, the problem is of difference in the lowest power। न्यूमरेटर की lowest power क्या है 2, जो highest है वही lowest भी है, और डिनोमिनेटर की lowest power क्या है, डिनोमिनेटर की lowest power है 0। ठीक है, हम पावर उसकी लेते हैं जिसका की कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो कोएफिशिएंट इसमें इसका है लोएस्ट लोअर पावर, इसमें नॉन जीरो कोएफिशिएंट लोएस्ट पावर का 1 है, तो 1 कोएफिशिएंट है इसमें, 3 कोएफिशिएंट है लोएस्ट पावर का। नाउ यू सी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है लोएस्ट 2 और इसकी डिग्री है लोएस्ट 0, तो 2 minus 0 is 2 which is not less than or equal to 1। therefore such type of a function we cannot realize in our conditions, such type of function we cannot realize in our conditions। ऐसा क्यों हुआ, why I am saying this, why this will happen, क्यों नहीं कर पाएंगे रियलाइज। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं बीबो कॉन्सेप्ट, BIBO, which is also called as bounded input bounded output। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का कॉन्सेप्ट, वी कॉल इट इज इन दिस वे। ओके, तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी सिस्टम है, एनी सिस्टम, एक इनपुट पोर्ट है उसमें और एक आउटपुट पोर्ट है। ये इनपुट है, ये आउटपुट पोर्ट है। कभी भी ऐसा नहीं होगा फिजिकली, अगर फिजिकल रियलिटी में बात करें, कि मैं इनपुट दे रहा हूं किसी फाइनाइट वैल्यू जैसा और आउटपुट आ जाता है इनफाइनाइट। दिस शुड नेवर हैपन। ठीक है, वरना तो आपके पास बेशुमार दौलत आ जाएगी। आप किसी चीज को इनपुट देंगे 0 और आउटपुट आ जाएगा 10 लाख रुपीस, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फाइनाइट इनपुट देंगे तो आपको फाइनाइट ही आउटपुट मिलेगा। इसे बोलते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट टाइप ऑफ सिनेरियो। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इन्फिनिट गेन आ जाए। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन फिजिकल रियलिटीज, इम्पॉसिबल। तो इसलिए वी स्टिक टू व्हाट इज कॉल्ड एज बीबो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, BIBO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक एग्जांपल देते हैं, इनफैक्ट 2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंसेस भी। मैं बोल रहा हूं मार्केट में नेगेटिव रेजिस्टेंसेस खरीद सकते हैं हम। ठीक है, मान लिया। तो एक है हमारे पास सिस्टम जो इस तरीके से दिया गया है, ये 1 ओम का है, ये 1 हेनरी का है, इसलिए मैं इसे 1 और इसे S लिख सकता हूं, 1S is 1 हेनरी।
तो अगर यहां से आपको इसका ZS लिखने को दिया जाए तो व्हाट विल बी द ZS? ZS विल बी 1 प्लस S। फाइन। और इस ZS का अगर मैं कहता नहीं मुझे तो YS चाहिए, तो YS यू नो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू Z इनवर्स। इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस S इस सिस्टम के लिए। ओके, मान लीजिए अब सीन ऐसा था कि एक नेगेटिव रेजिस्टेंस मुझे बाजार से मिल गया था, तो मैंने नेगेटिव रेजिस्टेंस यहां लगा दिया है। सो नाउ दिस इज -1 ओम, नॉट 1, इफ पॉसिबल तो मैंने लगा दिया है। अगर ऐसा होता था या होता पॉसिबल होता तो अब जो ZS होगा व्हाट दैट विल बी सिंपली -1 प्लस S, या मैं लिख सकता हूं S-1। तो YS क्या हो जाएगा अब हमारे पास? YS विल बी 1/S-1। ठीक है, YS विल बी 1/S-1, यहां 1/S+1 है। ठीक है, इट इज इन दिस फॉर्म। नाउ क्योंकि आप ओम्स लॉ इन एडमिटेंसेस कैसे लिखा जाता है ये जानते हैं, वी राइट ओम्स लॉ एज I इज इक्वल्स टू YV। V इज इक्वल्स टू IR की जगह हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू YV। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अगर S डोमेन में काम करें तो IS विल बी इक्वल्स टू YS इंटू VS। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू YV, IS विल बी इक्वल्स टू YS इंटू VS। अब मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से VS इक्वल्स टू 1 सेलेक्ट किया, अपनी तरफ से मतलब कोई टेस्ट सोर्स लगाई दैट VS इक्वल्स टू 1। VS इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैंने VS को 1 रखा, आई एम लेफ्ट विद IS इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस S। इस केस में इनटू 1 चल रहा है तो ये VS को 1 मान लिया है हमने। वी कैन कंसीडर दैट ओके, टेस्ट करंट या टेस्ट वोल्टेज इज 1। फाइन। यहाँ पे जो IS होगा दैट विल बी व्हाट? इट विल बी 1/S-1। नाउ यू टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/S क्या होता है? यूनिट फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद हो, अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, देयर विल बी शिफ्टिंग इन टी एक्सिस थ्योरम। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस टी इंटू 1। तो 1 को हम ut भी लिखते हैं, यूनिट फंक्शन। यहां लिखेंगे आप e टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस टी, क्योंकि -1 है, इंटू ut, विच विल बिकम एक्चुअली e टू दी पावर टी ut। ओके, यू विल हैव इट इन दिस फॉर्म, e टू दी पावर टी ut। अब देखिए इनपुट मैंने केवल कितना दिया है? 1। v was 1, आई कंसीडर v इक्वल्स टू 1, यहां भी v 1। लेकिन एट t इक्वल्स टू 0 आप देखिए, t इक्वल टू 0 नहीं, एट t इक्वल्स टू वेरी लार्ज व्हाट विल हैपन? माय फंक्शन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो यहां पे व्हाट विल हैपन? आई विल सी दैट माय फंक्शन विल इंक्रीज लाइक दिस। तो एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर मैं देखूं, मान लो मैंने 10,000 साल बाद देखा, तो 10,000 साल बाद तो मुझे यहाँ पे एक नया सूरज दिख जाएगा। इन्फिनिट पावर का तो मतलब यही होता है ना, सूरज से भी ज्यादा पावर। अगर मैं यहाँ करंट देखूं तो आई विल हैव इन्फिनिट करंट फ्लोइंग, बट दिस इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज चूज पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स चूज करते हैं, नेगेटिव कोएफिशिएंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, भाई नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ओके, सो इफ वी हैव टू फॉलो द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, तो आउटपुट शुड ऑलवेज बी बाउंडेड इफ इनपुट वाज बाउंडेड। तो हमारा अगर मैं इसमें देखूं तो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टाइप ऑफ थिंग, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये बहुत जीरो रह जाएगा, वहीं ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे तो ये बढ़ता ही जा रहा है। इट इज ऑलवेज एवर इंक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन। जब हम ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स या कैलकुलस पढ़ते हैं तब तो ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली फॉल हो रहा है टाइप पढ़ लेते हैं, लेकिन फिजिकल रियलिटी में ये ब्लंडर हो जाएगा। लोग आपसे बिजली खरीदने लगेंगे अगर आप 1 वोल्ट से इन्फिनिट करंट उत्पन्न कर देते हैं तो, फिजिकली स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ नेगेटिव कोएफिशिएंट वी इग्नोर, हम अलाउ नहीं करते हैं कभी भी। फाइन। एंड ऑल फिजिकल नेटवर्क्स, जितने भी रियल फिजिकल नेटवर्क्स होते हैं ना, यहां लिख लीजिए, ऑल फिजिकल नेटवर्क्स आर Bibo stable. All physical networks are Bibo stable. They are stable. They have bounded input, then they will always have a bounded output. Okay. If they have bounded input, then they will always have a bounded output.
फाइन। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम साथ में इसको चलाएंगे। क्या? दैट फॉर एग्जाम्पल I cannot have my transfer function or the driving point impedance function to be like this, s plus j. इसका मतलब क्या हुआ कि s की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो गया है? s की पावर 0 का कोएफिशिएंट हो गया इमेजिनरी। इमेजिनरी होने का मतलब क्या है? इट इज एवर साइनोसॉइडल। कैसे? देखिए, अगर इस तरीके की कोई चीज आती है हमारे पास, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब आप क्या लिखेंगे? यही कंडीशन मान लीजिए, सेम कंडीशन इज देयर कि हमने v वगैरह को 1 कर दिया है। नाउ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी ऑफ विच फॉर्म? इट विल बी e to the power minus jt ut, e to the power minus jt ut. And now we have a problem. Why? Because at t equals to 0, although this function seems to be stable to me, देखिए e to the power jt का जो जिस टाइप का फंक्शन होता है वो एक साइनोसॉइडल टाइप का फंक्शन है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। साइनोसॉइड टाइप का या कॉस साइन टाइप का फंक्शन है। ओके, सो इफ दिस इज अ कॉस टाइप साइन टाइप ऑफ अ फंक्शन, तो यहां अभी तो हमें लग रहा है कि इफ इट विल बी इंफिनिटी, if it will be infinity, it will be fine for us. Now I will just open this thing a slightly, a bit of it. ठीक है, जैसे e to the power minus it becomes equals to cos t minus I sin t. ओके, cos t minus I sin t। अब इससे आप ut का मल्टीप्लाई कीजिए। सो नाउ आई हैव e to the power minus of iota t is equals to cos t ut minus I sin t into ut. Now you have to just check at t equals to infinity who will win, the cos will win or sine will win. You have to check that. Okay, that's why we be always on a safer side and we ignore that it is it cannot have imaginary power. So all coefficient of s must be real and positive numbers only. All coefficient of s must be real and positive numbers only. ठीक है, तो अभी तक हम उन्हीं 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दैट्स इट। अब थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। देखिए, हमारे पास fs जो दिया है, फॉर एग्जांपल लेट अस से इट्स ऑफ दिस फॉर्म, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5s, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5s। तो नेटवर्क फंक्शन होने के लिए तो ये ठीक है। अभी एक और फंक्शंस पढ़ेंगे जो होते हैं पॉजिटिव रियल्स फंक्शन, जो स्पेशल कैटेगरी होती है नेटवर्क फंक्शन की। तब यहाँ कुछ और कॉन्स्टेंट, कुछ और चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये क्या चीज होती है, व्हाट आर पोल्स एंड व्हाट आर zeros, what are poles and what are zeros. So because I am endorsing, not getting it endorsed by DEI, I am hosting these videos privately. तो आप लोग अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं कोई सवाल इन केस आपको अगर बीच में कोई सवाल पूछना है। और साथ ही आप लोग अगर मैं बीच में कोई सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे, तो यू कैन ऑल्सो आंसर दैट। सो हु विल टेल मी व्हाट आर पोल्स एंड व्हाट आर जीरोस? कोई आइडिया है किसी को? सर, जो न्यूमरेटर के जो रूट्स होते हैं उन्हें पोल्स बोलते हैं और डिनोमिनेटर के रूट्स को जीरो बोलते हैं। ओके, आपने कुछ कुछ सही बताया, बस उल्टा बोल गए आप। ओके, जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं उन्हें हम जीरोस बोलते हैं और जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं उन्हें हम पोल्स बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्यों, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे अभी इस फंक्शन को कोई रैशनलाइज करें जल्दी से, तो इट विल बिकम मेरे ख्याल से s+1 s+2। देखो सही किया है मैंने। और इसमें से s और s+5, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हुए हमारे फैक्टर्स। मैंने फैक्टर्स में तोड़ लिया, s+1 एंड s+2। देखिए s स्क्वायर 2s फिर s+2, ये ठीक है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। मैंने फैक्टर्स में इन्हें तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है। नाउ
इन फैक्टर्स के रूट्स कैसे निकालते हैं? तो आप इसको देखिए, इसको बराबर 0 कीजिए, तो यू विल गेट s equals to -1 is a root, okay, and s equals to -2 is a root. तो -1 और -2 is a root of what? अगर मैं इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तोड़ रहा हूं तो न्यूमरेटर में अगर s की जगह -1 लिख दें तो पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। देखें, -1 + 1 0, फिर वो ns 0 हो गया। या s की जगह -2 लिख दें तो पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो a 0 is that value of s for which fs becomes 0, यानी न्यूमरेटर 0 हो जाता है। तो हम यहां लिखते हैं 0 मतलब अब ये s की कोई वैल्यू, तो 0 is that value of s for which ns या फिर ns के साथ में पूरा का पूरा fs becomes equal to 0, becomes 0। तो देखिए s की जगह क्या वैल्यू लगाएं, -1 लगाएं तो 0 हो जाएगा ये पूरा fs, और -2 लगाएं तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में देखें तो देखिए डिनोमिनेटर के रूट्स क्या क्या होंगे, कोई बता सकता है? ये तो बात तय है कि क्योंकि पावर 2 है तो रूट्स 2 होंगे, तो व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर? 0 and -5. 0 and -5 exactly. So at s equals to 0 and at s equals to -5 ds will become 0. अब अगर ds 0 है तो fs क्या हो जाएगा? Something upon 0 is infinity. Therefore we say that a pole is that value of s, a pole is that value of s for which denominator becomes 0. ये शायद थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर करके शायद देखें आप। So a pole is that value of denominator, of that value of s for which denominator becomes 0 and the function fs becomes infinity. Denominator becomes 0 and function fs becomes infinity. Okay. In order to have, अब देखिए गौर से, in order to have a network function in which we have all the powers of s which are positive and real, all the powers of s which are positive and real, तो पोल्स और जीरोस के ऊपर भी कोई कंडीशंस लग जाएंगी। जैसे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू नाउ प्लॉट पोल्स एंड जीरोस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये है रियल एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो एस जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है वो सिग्मा एक्सिस है, प्लस माइनस दोनों साइड, ये माइनस सिग्मा एक्सिस है, ये प्लस जे ओमेगा एक्सिस है और ये माइनस जे ओमेगा एक्सिस है। तो जो भी पोल्स और जीरोस होंगे वो इस साइड में आने चाहिए, लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन बोलेंगे इसे। तो एक एस प्लेन ऐसा है जिसमें सिग्मा इज पॉजिटिव, एक एस प्लेन ऐसा है जिसमें सिग्मा इज नेगेटिव, मतलब दो में पार्ट दिया है। आवर एस प्लेन में जो पोल जीरो डायग्राम होगा उसमें यू वुड सी दैट पोल्स ऑलवेज विल लाई ऑन द नेगेटिव या लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। तो यहां लिख रहा हूं मैं, पोल्स मस्ट लाई इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई इनपुट है s+1, तो देखा था इंस्टेबिलिटी आ रही थी। और s, अगर ये मेरे पास एक मान लीजिए फंक्शन है, तो इसमें रूट क्या हुए, इसमें डिनोमिनेटर के रूट हुए s=+1, विच इज नॉट अलाउड। तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही अलाउड हैं, इसलिए
जब रूट होंगे तो वो नेगेटिव आएंगे। तो ओनली लेफ्ट हाफ, ये देखिए, ओनली लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन इज अलाउड फॉर पोल्स। सो पोल्स मस्ट 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 lie in the left half of the S plane. Poles must lie in the left half of the S plane. अभी केवल पोल्स के लिए बात हो रही है, ये एक्चुअली इवेंचुअली जीरो पे आके खत्म हो जाएगी कि जीरो के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ऐसा क्यों अभी जीरो पे बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए एनीवेज, अगर मेरा y(s) इज ऑफ दिस फॉर्म, लेट्स से s - 1 अपॉन s + 2, तो अभी तो ठीक है, हमारे पास पोल्स आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हाफ बट जीरोज आर ऑन राइट हाफ, ये चलेगा। लेकिन अब आपके पास एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट यू ओनली डील विद y(s) नॉट विद z(s), बिकॉज इफ यू डू z(s) इट विल बी s + 2 अपॉन s - 1. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, z(s) के पोल इज ऑन पॉजिटिव साइड विच इज नॉट अलाउड। तो अगर आपको इस तरीके से फंक्शंस दिए गए हैं जिसमें यू हैव सम जीरोज ऑन राइट साइड, then keep in mind you cannot convert it into inverse. ठीक है, तो keep that thing as driving point admittance है तो admittance, impedance है तो impedance, और immittance है तो immittance, मतलब admittance को admittance रखना है और impedance को impedance रखना है। ठीक है, so it is now clear that we cannot have poles on right side, we can only have poles on left side. Poles can be complex also. दूसरी point, poles can be complex. Poles can be complex. Okay, so I will repeat this one. This one you want me to repeat, right? So I will repeat it. हमने कहा कि मैं बीबो स्टेबिलिटी फॉलो कर रहा हूं, विच इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। बीबो स्टेबिलिटी में आई वॉज नॉट अलाउड टू हैव एनी नेगेटिव कोएफिशिएंट। तो मान लीजिए इस तरीके का फंक्शन है 1/s - 1, आई वॉज नॉट अलाउड टू हैव दिस। वाई? क्योंकि अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो इट विल हैव e⁻t टर्म, जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है और बीबो स्टेबिलिटी को डिफाई करता है। बट मैं ये कह रहा हूं अब कि आई एम टेकिंग इनवर्स ऑफ इट, s - 1/1, जो कि अगर ये y था तो ये z हो जाएगा, इनवर्स ऑफ इट। इस पे हम वो कंडीशन अलाउ नहीं करा रहे हैं अभी। क्या कंडीशन? दैट जीरोस मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन। तो ये अलाउड है, अभी के लिए अलाउड है, बट इवेंचुअली जब आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो 1/, करके कन्वर्ट करना है, तब अलाउ नहीं होगा। तो वी विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। इज इट फाइन नमिशा? अभी हम इस चीज पर आ रहे हैं दैट पोल्स कैन बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स के साथ कॉन्जुगेट्स भी लगा लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव पोल ऑफ दिस फॉर्म। किस फॉर्म? 1/s + j बीटा। आई एम नॉट सेइंग आई एम हैविंग एनीथिंग लाइक दिस। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मेरे पास पोल्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में। आई एम सेइंग दैट जो मेरा डिनोमिनेटर फंक्शन होगा, तो एफएस में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। आई एम सेइंग कि जो डिनोमिनेटर फंक्शन होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मान लेते हैं अब आप इसका स्क्वायर करके देखिए, दैट इज, तो एक -α - j बीटा है, एक -α + j बीटा है। इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, यू विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव रियल कोएफिशिएंट्स ओनली। करके देख लीजिए, s² और तो a + b a - b करके देख लेते हैं ना इसे। तो आई कैन टेक इट एज s - α का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये है पूरा, ये है पूरा a - b a + b, तो -j बीटा का होल स्क्वायर। तो इट विल बिकम s² - α², तो a² + b² - 2αs, ओके, a² + b² - 2αs, और फिर माइनस j बीटा, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस β² और आ गया। ठीक है, तो अल्फा को नेगेटिव होना जरूरी है, अल्फा शुड बी नेगेटिव। अगर मेरे पास पोल्स इस फॉर्म के हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, इसमें देखिए कोई भी चीज इस ds वाली टर्म में यू कैन सी दैट
इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कि कोएफिशिएंट एक रियल पॉजिटिव नंबर ना हो, ठीक है, बशर्ते कि अल्फा इज अ नेगेटिव नंबर। तो इफ अल्फा इज अ नेगेटिव नंबर तो माइनस अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा और फाइन अगर अच्छे से लिखूं तो इट विल बी, आई विल बी लेफ्ट विथ एस स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अ कोई नंबर है। तो ये तीनों है एस की पावर 2, 1 और 0, जहां पे माइनस 2 अल्फा एस है हमारे पास। तो मैं बोल रहा हूँ अल्फा इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आई शुड हैव अल्फा ऑन अ नेगेटिव साइड। तो मान लीजिए हमारे पास जे ओमेगा प्लेन ये रहा, दिस इज आवर जे ओमेगा प्लेन, ठीक है, दिस इज आवर जे ओमेगा प्लेन। तो मैं कह रहा हूं अल्फा हमेशा नेगेटिव होगा, अल्फा नेगेटिव मतलब जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा, तो आई कैन हैव पोल्स ओनली ऑन दिस वे। तो ये हुआ आपका माइनस अल्फा प्लस जे बीटा, अगर ये अल्फा बोल रहा हूं तो मैं, और ये वाला पॉइंट हुआ आपका माइनस अल्फा माइनस जे बीटा। तो हमें इसी फॉर्म में चाहिए, वी वांट अल्फा टू बी नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि वेदर पोल्स के अंदर you can have the complex numbers, you say yes we can have complex number, but remember that those complex numbers should have conjugates, those complex numbers should have conjugates, okay. So we will just reconnect in 1 minute and then I will take if you have any doubt, confusion, query, ठीक है, एक दोबारा से reconnect करेंगे।